Hi, humans, and welcome back to Humanities. We are starting off quickly with the last chapter of our book one, which is the challenges of cultural diversity. Now, in this chapter, we are going to study everything about diversity, the cultural diversity. What is your identity? How is it formed? What is the community identity? What is the difference between a nation and a state? How different nations they try to eliminate or reduce the diversity. So there are going to be many general points. One point is also about the civil society, which we are going to discuss at the end of the chapter. So it's a very fun chapter, small chapter. Let us quickly try and finish it off, right? So firstly, let us begin with the definition of diversity. We have done it already. What is diversity? It refers to differences. Like there are different people. People cannot be homogeneous. Like different people with different characteristics, right? So diversity refers to differences rather than inequality. Many of us take diversity, many of us think that diversity is nothing but inequality, but diversity is differences rather than inequality. Okay, now let us familiarize ourselves with a new term, which is cultural diversity. Now, what is cultural diversity? Very powerful indeed. Like you talk to a person about his caste, religion, and there will be an intense emotional attachment, right? So cultural diversity is something which is very powerful. It can arouse intense passions in a person, right? It can mobilize large crowds, and it is accompanied by economic and social. If it is accompanied by economic and social inequalities, it further complicates things. Things become worse, right? And yes, things get worse when scarce resources they are also to be shared. So basically, cultural diversity hota kya hai? It is a very powerful concept. It can arouse intense passions, mobilize large crowds. It, if is accompanied by economic and social inequalities, things will get worse, right? And obviously we have to share scarce resources are limited, and that's why things are bound to get worse. Okay, so this is all about a cultural diversity. समझा आपको cultural diversity होता क्या है? Then what is diversity? Now moving on to the new concept called community identity. ना सी कम्युनिटी आइडेंटिटी की जब भी हम बात करेंगे, एक दिमाग में पॉइंट फिक्स कर लेना है कि कम्युनिटी आइडेंटिटी इज एन एस्क्रिप्टिव फॉर्म. एस्क्रिप्टिव से मेरा मतलब ये है कि एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है. बाय बर्थ ये आपको आइडेंटिटी मिलती है. नोबडी चूजेस. Okay, nobody can choose your family. We cannot choose your caste. We cannot choose our caste, class, etc. Okay, so community identity is ascriptive in nature, which means we have to do nothing to get it. It is based on our birth. Okay, so community identity is based on birth and belonging rather than some form of achievement, accomplishment, or qualifications. You have to do nothing to get it. It is what we are rather than what we have become. Now, this there are two concepts, right? Ascribed status and achieved status. So agar hum what we are ki baat kar rahe hain, it means we are talking of our ascribed status. And if we are talking about what we have become, तो हम अचीव्ड स्टेटस की बात कर रहे हैं, राइट? बट यहाँ पे दिमाग में रखना है कि कम्युनिटी आइडेंटिटी एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है, एस्क्रिप्टिव इन नेचर. देयर इज नो चॉइस व्हिच यू कैन मेक, ठीक है, अबाउट योर फैमिली और योर कम्युनिटी. और कम्युनिटी आइडेंटिटीज दे आर डिटरमाइंड बाय एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ, एज आई ऑलरेडी सेड कि the family which you are born into is your community identity. आप उसे चूज नहीं कर सकते. It is very hard to shake off. ठीक है, एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि जो आइडेंटिटी पाने के लिए आपने कुछ किया भी नहीं है, वो आपके साथ इतने इमोशनली अटैच हो जाते हो उस आइडेंटिटी के साथ. पीपल दे ऑफन रिएक्ट इमोशनली और वायलेंटली. ठीक है, it has got an ability to mobilize huge crowds also. Whenever there's a perceived threat to one's community identity, there are ample of examples in our country as well. ठीक है, लोग अपनी अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी के लिए बहुत स्ट्रगल, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट करते रहते हैं. ठीक है, there are religious
battles all the time, right? So let us now understand the features of community identity. First is very well explained, ma'am, ascriptive hoti hai based on birth, and second is universal. Each one of us has got a community identity. ठीक है, हम सबके पास एक रिलीजन है, रीजन है, वी हैव गॉट अ फैमिली, हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है. ठीक है, सो फर्स्ट इज की कम्युनिटी आइडेंटिटीज दे आर एस्क्रिप्टिव इन नेचर, एंड सेकेंडली इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई रिलीजन नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, राइट? Okay. Now, there's a very, very important concept. भाई nations और states individually हमने बहुत बार सुन रखे हैं ये words, but what is the scientific difference between these two terms? What is a nation? What is a state? What is the difference between their meanings? So, once we're talking about nations, nations are nothing but a large scale community. बहुत बड़ा कम्युनिटी है, वेरियस पीपल दे आर लिविंग टुगेदर इन अ बाउंड्री. ठीक है, उसको हम नेशन बोलेंगे. कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, राइट? मेंबर्स दे शेयर द डिजायर टू बी पार्ट ऑफ द सेम पॉलिटिकल कलेक्टिविटी. There's a sense of nationalism, a spirit of nationalism when we are talking of nations. ठीक है, बस एक की वर्ड याद रखना, large scale community and members they share the desire to be the part of same political collectivity. अभी political collectivity क्या है? आ जाओ स्टेट की डेफिनेशन पे. ना स्टेट एक abstract entity है which contains a set of political and legal institutions. ठीक है, claiming control over a particular geographical territory. Now see, whenever we are talking about a state, there's a political and legal concept which pops in, right? So nation कुछ नहीं है, एक बाउंड्री है, एक लार्ज स्केल कम्युनिटी है. ठीक है, लोग एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर रह रहे. बट वेन एवर यूर टॉकिंग ऑफ स्टेट, एक पॉलिटिकल और लीगल कॉन्सेप्ट आ जाता है, गवर्नमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक है, एक इट्स अ पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ अ वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ स्टेट वाज गिवन बाय मैक्स वीबर. हु इज मैक्स वीबर, मैम? A very well-known sociologist. ठीक है, तो मैक्स वीबर ने एक स्टेट का डेफिनेशन दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ CUET पर्सपेक्टिव. मैक्स वीबर ने कहा था कि स्टेट इज नथिंग बट अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी. So they'll give you this definition, they'll ask you who has given this definition, and your answer is Max Weber. ठीक है, now let's move a little further. अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे. नेशंस और स्टेट में क्या डिफरेंस है, नेशन और बाकी कम्युनिटीज में क्या डिफरेंस है. तो हाउ टू डिस्टिंग्विश अ नेशन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटीज. सो बेसिकली नेशन इज अ लार्ज स्केल कम्युनिटी, ये हमने डेफिनेशन में देख लिया. बट नेशन में ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी कम्युनिटीज में नहीं है? So a nation is a peculiar form of community which is easy to describe but hard to define. This came in my CUET exam. ठीक है, उन्होंने एक blank दे दिया था और बोला था dash is a peculiar form, nation is easy to describe but hard to define. तो this sentence is important. अब nation और बाकी कम्युनिटीज को हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, which is state. See, nations की definition में भी they share a desire to be a part of some same political collectivity. ठीक है, so nation में जो लोग होते हैं they want to form a single state, but बाकी communities में ऐसा नहीं है. Nations are communities with their own states. Nations के पास खुद का state होता है और बाकी communities के पास अपना खुद का ऐसा as such state नहीं होता. They are very raw. ठीक है, so criteria to distinguish a nation is its state. Now, also you can also add up points like a feeling of nationalism होता है. ठीक है, now एक बहुत common concept जो हम सब ने पढ़ रखा है, dual citizenship. When a person has citizenship of more than one country, or to be precise 2 countries. ठीक है, so these laws allow citizens
of a particular state to also simultaneously be a citizen of another state. Like in your textbook, they have given you the example of Jewish American citizen, जो इजराइल का भी citizen है और अमेरिका का भी citizen है at the same time, right? So dual citizenship से एक feature मिलता है कि आप किसी दूसरे country की army में भी join कर सकते हो. You can join the military of other country. So dual citizenship is nothing but a citizenship of two countries. Okay. Now, as nations, they aspire to form states. States are also aspiring to form nations. धीरे धीरे ये दोनों बहुत ऐसे linked concepts हैं कि अगर आप nations है तो आपको एक political, legal framework देना है अपनी nation को. So you aspire to form a state, but states they also are aspiring to form nations. ठीक है. So ऐसा क्यों होता है? क्योंकि they want the establishment of democracy. States are more desperate to form nations these days क्योंकि उनको democracy चाहिए, उनको feeling of nationalism चाहिए, उनको एक brotherhood, kinship की feeling चाहिए. So that's why they are also aspiring to form nations. Now, governments of various countries, they are trying to eliminate cultural diversity. Now states they try to eliminate cultural diversity. Not necessarily हर एक country में ऐसा नहीं होता, but the ways, there are some ways in which states might try to eliminate cultural diversities. इसके दो types हैं, ठीक है. पहला है assimilation and दूसरा है integration. What does this mean? देखते हैं, ठीक है. Policies of assimilation, policies of integration. Now जब भी मैं पॉलिसीज, ये दो पॉलिसीज किसकी टाइप्स है भाई? वेज टू एलिमिनेट कल्चरल डाइवर्सिटी. बहुत डाइवर्सिटी हो गई, वी हैव टू रिड्यूस द कल्चरल डाइवर्सिटी. तो पहली पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन व्हिच इन्वॉल्व्स, कीवर्ड्स ध्यान दो, आउटराइट सप्रेशन of the identities of ethnic, religious और linguistic groups. यानी आप उनको जबरदस्ती सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है. सो पॉलिसीज ऑफ एसिमिलेशन में थोड़ा फोर्स का आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगा कि देयर इज एन आउटराइट सप्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स, ऑफ द आइडेंटिटीज ऑफ एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. बट इंटीग्रेशन में क्या होता है? थोड़ा सॉफ्टर और माइल्डर साइड है. दे सीक टू assert single national identity by attempting to eliminate ethno national and cultural differences, but ये प्राइवेट डोमेन में अलाउ कर देते हैं. ये बोलते हैं कि आप एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी रखो, हम एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी पॉलिसी रखेंगे, बट यू कैन डू एनीथिंग व्हिच यू वांट इन योर प्राइवेट डोमेन. अब प्राइवेट स्पेस रखिए खुद की, कुछ भी करिए, बट नेशनल लेवल पे सिंगल आइडेंटिटी चलेगी, ठीक है. अगेन पॉलिसीज ऑफ एसिमिलेशन, आउटराइट सप्रेशन होता है, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है? there is an assertion of single national identity, but प्राइवेट डोमेन में हम अलाउ कर देते हैं माइनॉरिटीज को टू कंटिन्यू विद देयर प्राइवेट प्रैक्टिसेस, ठीक है. नाउ there are ways to establish singular national identity. Now these are the ways by which majorities they try to suppress the minority. Now these are just the keywords, ये आपको डिटेल में यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है. Now ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट. सी 6 मार्क का क्वेश्चन है, प्रॉपर 6 पॉइंट्स है. सबसे पहले आप पावर सेंट्रलाइज कर रहे हो, ठीक है. यू आर सेंट्रलाइजिंग ऑल पावर टू फोरम्स वेयर डोमिनेंट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स मेजॉरिटी, ताकि डोमिनेंट ग्रुप को सारे बेनिफिट्स मिल जाए, सारी पावर मिल जाए. एलिमिनेटिंग द ऑटोनॉमी ऑफ लोकल और माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है. पहला पॉइंट हो गया सेंट्रलाइजिंग. आप माइनॉरिटी के बारे में ना सोचते हुए सारा जो पावर है वो मेजॉरिटी को ही दे रहे हो, ठीक है. So this is done. Second is unified legal and judicial system. You're imposing a unified legal judicial system based on the dominant group's traditions. उनके traditions follow करके, उनके beliefs follow करके आप एक legal और judicial system बना रहे हो, ठीक है. And you're abolishing alternative system used by other groups. Third point, language. Language is the key to every prison, ठीक है. तो language
लैंग्वेज का इस्तेमाल करके माइनॉरिटीज को बहुत सप्रेस किया जाता है. क्लासिक एग्जाम्पल इज श्रीलंका. भाई सिन्हालीज इम्पोज कर दी गई थी, तो तामिलियंस दे गॉट ऑफेंडेड. ठीक है. सो लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डोमिनेंट ग्रुप्स लैंग्वेज is used as a weapon to it is imposed as official or national language, और इसका यूज मैंडेटरी कर दिया जाता है. सो माइनॉरिटी फील्स ऑप्रेस्ड. एंड देन स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आप इस्तेमाल करते हो इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट द मेजोरिटेरियनिज्म. कैसे मैम? सी हियर, you are using the state controlled media and educational institutions. You're promoting a language culture through these institutions. ठीक है. And then you're using majority symbols. आप जो majority group के symbols है, उनके जो heroes है, उनको state symbols बना देते हो. ठीक है. ये एग्रेवेट करता है द एलियनेशन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सारे जो माइनॉरिटी से लैंड्स, फॉरेस्ट, उनके रिसोर्सेज जो उनको बेसिक लगते हैं वो सारे सीज कर लेते हो और उसे नेशनल रिसोर्स डिक्लेयर कर देते हो. ठीक है. यू आर सेंट्रलाइजिंग पावर, यूनिफाइड लीगल जुडिशियल सिस्टम, लैंग्वेज एज अ वेपन, देन स्टेट कंट्रोल मीडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके आप मेजोरिटी का लैंग्वेज सिंबल्स प्रमोट कर रहे हो. देन यू आर मेकिंग मेजोरिटी के सिंबल्स एज द स्टेट सिंबल्स. फिर आप जो माइनॉरिटी की रिसोर्सेस है वो सारी सीज करके उन्हें नेशनल रिसोर्सेस डिक्लेयर कर रहे हो. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू concentrate and concentrate and divert our attention to how diverse our country is. ठीक है. अब हम इंडिया की डाइवर्सिटी को थोड़ा देखते हैं. भैया सबसे ज्यादा सोशली एंड कल्चरली डाइवर्स है हमारी कंट्री. देयर आर डिफरेंट पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वेरियस कास्ट्स, रिलीजन्स. ठीक है. नाउ 1.21 बिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. अब तो बहुत ज्यादा हो गए भाई. ठीक है. 1632 different languages. कितनी? 1632 different languages are spoken in our country. 18 are officially recognized under the 8th schedule. ठीक है. 18 languages, they are officially recognized under the important point, very very important. ठीक है. 8th schedule of the constitution. अब religions कौन से follow होते हैं? ये तो बस कुछ रिलीजन्स के नाम लिखे. हिंदूज, मेजॉरिटी आर हिंदूज, यस. देन सेकंड लार्जेस्ट, like the largest minority is Muslim minority. ठीक है. By the way, India is the third largest Muslim country after Indonesia and Pakistan. ठीक है. सो हिंदू सबसे ज्यादा है, मुस्लिम्स लार्जेस्ट माइनॉरिटी है. देन क्रिश्चियंस आते हैं, सिक्स, बुद्धिस्ट और जैन्स. इनका ऑर्डर भी लर्न कर लो. ठीक है. यू नीड नॉट लीव एनी कॉर्नर ऑफ द एनसीईआरटी. ऑर्डर भी लर्न कर लो. आपसे पूछ लेंगे कि विच इज द थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी. 6 है भाई. फर्स्ट लार्जेस्ट मुस्लिम, सेकंड लार्जेस्ट क्रिश्चियंस, थर्ड 6. तो इनका ऑर्डर पूछ सकते हैं. ठीक है. इन सीयूईटी, ऑल्सो इन द एमसीक्यूज फॉर बोर्ड्स. ठीक है. अब हमने पढ़ लिया स्टेट क्या होता है, हमने पढ़ लिया नेशन क्या होता है. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट अ स्टेट नेशन इज. ठीक है. नेशन स्टेट पढ़ लिया, अब स्टेट नेशन देखते हैं. स्टेट नेशन में क्या होता है? सी, different states, they have a feeling, they have a willingness to combine themselves and form a single nation. ठीक है. State nation refers to a situation where various states can coexist peacefully in a single state policy. Keywords. ठीक है. भाई अलग अलग states, they want to coexist peacefully and cooperatively in a single state policy. Now a very new concept, a very very fresh concept जिसका नाम है regionalism. See 6.2 of your NCERT. What is regionalism? Regionalism यानी, for example, I am from Maharashtra. Now I want my state to get all the resources because I think that my state has got a lot of potential.
ठीक है। सो मैं मेरे स्टेट के लिए, मेरे रीजन के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे स्टेट को सब कुछ अच्छा अच्छा मिलना चाहिए। सो रीजनलिज्म इज रूटेड इन इंडियाज डाइवर्सिटी। भाई बहुत सारे लोग हैं, देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी, पीपल विल ऑलवेज फाइट फॉर रिसोर्सेस, ठीक है। It is rooted in India's diversity of language, culture, tribes, and religions. It is encouraged by geographical concentrations. Like geographical concentrations होती हैं, अलग अलग language, culture, tribe, ये सारे इसके features हैं, ठीक है. It is rooted in India's diversity. Now, it is encouraged by geographical concentration of these identity markers in particular regions and fueled by a sense of regional deprivation. ना मुझे लगता है कि मेरे स्टेट को बहुत कम फंडिंग आ रही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली गेटिंग पजेसिव, एंड आई वांट कि मेरे रीजन को अच्छी फंडिंग मिले. आई वांट दैट माय रीजन शुड प्रॉस्पर वेल. ठीक है, किसको नहीं लगता? वी ऑल फील सो. सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म. ठीक है, इट इज फ्यूल्ड बाय अ सेंस ऑफ रीजनल डेप्रिवेशन. अब इंडियन फेडरलिज्म में रीजनलिज्म के जो कॉन्फ्लिक्ट है, रीजनलिज्म का जो इशू है, इसको सॉल्व करने की काफी हद तक कोशिश की है. बिकॉज फेडरलिज्म में देयर इज a division of power, right? So Indian federalism has been a means of accommodating these regional sentiments. How, ma'am? Let us see it. Now, see, let's get into a little of history. जब in the colonial era, various states were our country was divided into presidencies and princely states, right? So presidencies में main presidencies आती है Madras, Bombay and Calcutta, right? So Madras में there were people from these different languages, ठीक है. Bombay was also multilingual state. मराठी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, ये सारे लोग थे. और कैलकटा प्रेसिडेंसी में भी काफी डाइवर्सिटी थी, और प्रिंसली स्टेट्स थे. ठीक है. सो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज एंड प्रिंसली स्टेट्स, डिफरेंट पीपल, सो मच डाइवर्सिटी. ठीक है. सो आफ्टर अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? बहुत सारे एजिटेशंस हुए for reorganization, for the demand of statehood was very popular after that. ठीक है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है, मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथनो नेशनल आइडेंटिटी इज योर लैंग्वेज, रीजन एंड ट्राइबल आइडेंटिटी. तीन चीजें जो आपके इंस्ट्रूमेंट, आपके एथनो नेशनल आइडेंटिटी को बनाती है, और लैंग्वेज, रीजन एंड ट्राइबल आइडेंटिटी. ठीक है. सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. तो बहुत सारा एजिटेशन होने लगा था, फिर रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स होने लगी, फिर फाइनली भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना. कब? 1 नवंबर 1956. ठीक है. इसके पहले क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश में पोटी श्रीरामुलु, ही डाइड. ठीक है. सो ही डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फिर आंध्र प्रदेश, राइट? सो इसके बाद एसआरसी बना आपका 1 नवंबर 1956 को, एंड 1920s पे इनफैक्ट आईएनसी को भी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. सो लीडर्स दे प्रॉमिस टू मेक लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बट दे हैड फियर्स विद इन. क्या फियर्स थे भाई? कि अभी अभी पार्टीशन हुआ है, अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे पूरे इंडिया को डिवाइड कर देंगे, there will be no unity, right? So leaders in Congress, they both hesitated and there were as a result strong movements. ठीक है. सो ये आपको बता रहा है कि रीजनलिज्म कैसे कैसे डेवलप हुआ. फिर आंध्र प्रदेश की स्टोरी बता दी. अक्टूबर 1953 पोटी श्रीरामुलु, 7 weeks of fast के बाद he died unfortunately, and this provoked violent protests. It led to the creation of Andhra Pradesh and SRC as well, 1 November 1956. So formal approval मिला on the principle of linguistic states. कब? In 1956. तो ऐसा थोड़ा थोड़ा रीजनलिज्म का बर्थ होता है. लैंग्वेज डिवाइडेड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका. पाकिस्तान में भाई
Bengali people were not given their rights. Urdu was imposed everywhere. इसलिए आपका 1971 का वॉर हुआ. ठीक है. सो लैंग्वेज ने पाकिस्तान को डिवाइड किया, श्रीलंका को डिवाइड किया, बट इंडियन लीडर्स ने कैसे अपने प्रूडेंस के साथ दे अवॉइडेड डिविजन्स. ठीक है. लैंग्वेज linguistic division has in fact increased the unity of our country. ठीक है. लैंग्वेज ने इंडिया को अलाउ किया है टू एस्केप एन इवन वर्स फेट, जो है ऑब्वियसली डिवीजन. छोटे 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 टुकड़ों में इंडिया वुड हैव बीन डिवाइडेड अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया होता. लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव एक्चुअली यूनाइटेड इंडिया. ठीक है. दिस इज द result of our linguistic division. Okay, now respective regional sentiments through strong institutional structure ये कैसे हुआ है? सबसे पहले सी फेडरलिज्म. हमने फेडरल स्ट्रक्चर, कासी फेडरल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है. कौन सी कंट्री से? इट इज कनाडा. ठीक है. सो फेडरलिज्म हमने यूज किया है. देन वी हैव डिवाइडेड various subjects into lists. State list जिसपे states individually work करेंगी. concurrent list जिसमें थोड़ा काम यूनियन करेगा, थोड़ा काम स्टेट्स करेंगे. ठीक है. एंड यूनियन लिस्ट जिसमें सेंटर का ही पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा. देन वी हैव ऑल्सो मेड डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स. हमने राज्यसभा, अपर हाउस को बहुत सारी पावर्स दिए. ठीक है. State legislatures, they determine the composition of upper house, which is the Rajya Sabha. ठीक है. So this is how we are solving the problem of regionalism and alienation of states. ठीक है. So periodic committees बैठती है दोनों स्टेट और सेंटर की, जो स्टेट सेंटर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग रखती है. एक क्लासिक एग्जाम्पल इज योर फाइनेंस कमीशन. ये क्या होता है? ये बिठाया जाता है every 5 years. In your book I guess it is 10 years, every 10 years, but it is not. ठीक है. फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में बिठाया जाता है to decide on sharing tax revenues. जो टैक्स रेवेन्यू सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए. So there are various institutions which are further strengthening the center state relations. अब थोड़ा और आगे जाते हैं. रिलीजियस कम्युनिटीज का क्या सीन है इंडिया में? रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटीज कैसी हैं? तो देर आर 2 सेट्स जिसपे हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज ये है. ठीक है. एस्टैब्लिश्ड है. पहला है सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म सेट. दूसरा है मेजॉरिटी माइनॉरिटी सेट. नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं. व्हाट इज सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म सेट? इसमें स्टेट का रिलेशनशिप देखा जाता है डिफरेंट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स के साथ. बट मेजॉरिटी माइनॉरिटी सेट ये डिसाइड करता है कि हाउ स्टेट ट्रीट्स पीपल बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज. ठीक है. सो सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म में स्टेट का रिलेशन विथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स, बट मेजॉरिटी माइनॉरिटी सेट में how state is actually treating people belonging to majority or minority communities. ठीक है. Now there's a strong tendency of obviously of dominant groups to assume कि उनका culture सबसे supreme है, उनका language, religion, it is synonymous with the nation state. बट यहाँ पे महात्मा गांधी और टैगोर जी ने कहा था कि भाई आप जल्दी से एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म वाली जो चीजें खत्म करिए. इट इज अ वेरी अगली एस्पेक्ट. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई बिलीव इन इंक्लूसिव नेशनलिज्म. अब माइनॉरिटी को हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? माइनॉरिटी इज नथिंग बट हम सोचते हैं कि इट इज अ न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप. हम सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्टिंक्शन देखते हैं, but there's also a sense of relative disadvantage attached to this term. There are 2 aspects. First is numerical distinction और दूसरा है relative disadvantage. की सिर्फ जो न्यूमेरिकली छोटा है उसे माइनॉरिटी कहेंगे क्या? कि कुछ ग्रुप्स है जिनको डिसएडवांटेज मिल रहा है उनको भी माइनॉरिटीज कहेंगे. सो ये 2 एस्पेक्ट्स है, 2 फीचर्स है माइनॉरिटी के. रिलेटिव डिसएडवांटेज भी होता है और एक न्यूमेरिकल डिस्टिंक्शन भी होता है. न्यूमेरिकली स्मॉल होते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. यहाँ पे माइनॉरिटी एक डिफरेंट काइंड की माइनॉरिटी है जिनको प्रिविलेज्ड माइनॉरिटीज कहते हैं. वो न्यूमेरिकली तो स्मॉल है बट दे आर नॉट
facing any disadvantage as such. They are wealthy minorities. Like Parsis or Sikhs, they are wealthy minorities. इनको हम privileged minorities कहते हैं. Maybe इनको ऐसा कुछ डिसएडवांटेज फेस नहीं करना पड़ रहा होगा वेल्थ इश्यूज रिलेटेड और कोई दूसरे एस्पेक्ट रिलेटेड, बट इनको कल्चरल सेंस में बहुत डिसएडवांटेज फेस करने को मिलता है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नंबर. दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस people because of their small number, right? Now, very very important, minorities related आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स मेंशन किए गए. ठीक है, फर्स्ट इज योर आर्टिकल 29. I'm so sorry. माइनॉरिटी राइट्स. जब भी हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करेंगे, वी जस्ट हैव टू मेंशन 2 आर्टिकल्स. फर्स्ट इज आर्टिकल 29 एंड द सेकंड इज आर्टिकल 30. नाउ कभी कभी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 29 में क्या लिखा है बताओ, आर्टिकल 30 में ऐसा क्या लिखा है बताओ. सो आर्टिकल 29 में क्या लिखा है? Right to conserve the distinct language, script or culture, and admission in educational institutions shall not be denied. सबसे पहला कि भाई आपका जो भी डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर है वो आप प्रिजर्व करिए. नोबडी इज गोइंग टू से एनीथिंग अगेंस्ट इट. और आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आपको नॉर्मल एडमिशन मिलेगी. आपको कोई इंस्टीट्यूशन एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ योर लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा. ठीक. नाउ आर्टिकल 30 में ऐसा क्या डिफरेंट है? Now, these minorities, they've got a very special right. They've got a right to establish and administer their own educational institutions. A classic example, Muslims, they run their madrasas. ठीक है, so खुद की institution establish और administer करने का पूरा हक minorities को मिलता है. There is no discrimination in granting aid by the state. अगर ये लोग ऐसी institutions डालते हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर एड और प्रॉपर फैसिलिटीज इंश्योर करनी चाहिए इन ऑर्डर टू कंजर्व योर डाइवर्सिटी. ठीक है, सो ऑब्वियसली चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? इट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नाउ 2 आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, 29 एंड 30, रिलेटेड टू माइनॉरिटी राइट. नाउ वेरी वेरी जनरल टर्म्स, क्विकली विल फिनिश ऑफ. ठीक है, बहुत बहुत जनरली हमने सुन रखी है. फर्स्ट इज कम्युनलिज्म. व्हाट इज इट? भाई अग्रेसिव शॉविनिज्म होता है बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी. अलग अलग रिलीजन के पीपल एक दूसरे के साथ रायोट्स करते हैं. देयर इज एन अग्रेशन इन्वॉल्व्ड. दिस इज द कीवर्ड, अग्रेसिव शॉविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी. ठीक है, chauvinism is an attitude that sees one's own group as the only legitimate or worthy group, while other groups are seen as inferior or illegitimate. Communalism में एक superiority complex आ जाता है कि my religion is the only supreme religion and the whole country should follow my religion. ठीक है, so ये एक communalistic attitude. ठीक है. Now, ये जो मीनिंग बताया अग्रेसिव शॉविनिज्म का, ये इंडियन या साउथ एशियन मीनिंग है. इसका इंग्लिश मीनिंग भी है. इंग्लिश मीनिंग क्या कहता है? एक न्यूट्रल मीनिंग है. यानी इंडियन साउथ एशियन में थोड़ा अग्रेशन इन्वॉल्व है, बट इंग्लिश मीनिंग न्यूट्रल है. वो कहता है समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिटी और कलेक्टिविटी ऑफ एज डिफरेंट फ्रॉम individual. So English meaning is saying कि communalism is nothing but a community, a collectivity. But Indian South Asian meaning is saying communalism is aggressive chauvinism. Basically, communalism is opposite of secularism. ठीक है, so chauvinism ने हम खुद का बहुत सुपीरियर मानते हैं रिलीजन, बट सेक्युलरिज्म में सर्वधर्म समभाव, सारे रिलीजन्स को हम इक्वल वैल्यू देते हैं. राइट, सो लेट अस क्विकली सी द फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म. पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा है भैया, रिलीजन के बारे में नहीं है. ठीक है, कम्युनलिज्म इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड नॉट अबाउट द रिलीजन. आप बोलोगे हैं अभी तो बोला कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, रिलीजन रिलेटेड है, बट पॉलिटिशियंस और ये जो पॉलिटिक्स है ये बहुत प्रोवोक करता है कम्युनलिज्म को. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनलिज्म इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड नॉट अबाउट
religion important. दूसरा, communalists, they cultivate aggressive political identity and they are prepared to attack anyone who doesn't share their identity. They become faceless members of their own community. ठीक है. There's a recurrent source of violence, tension. बहुत एग्जाम्पल्स है इंडिया में. ठीक है. फेसलेस मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज रेडी टू किल, रेप और लूट. ठीक है. उनको सिर्फ कोई इंडिविजुअल दिख जाए जो उनकी कास्ट या कम्युनिटी का नहीं. ठीक है. देयर इज नो ह्यूमैनिटी. ठीक है. नो काइंडनेस. देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं. अपोजिटिव कम्युनलिज्म. ठीक है. अपोजिट ऑफ कम्युनलिज्म. इसका वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट और इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये भी अलग अलग मीनिंग्स. वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. चर्च और स्टेट यानी रिलीजन और स्टेट को अगर आप थोड़ा सेपरेट कर दो तो आपका सेक्युलरिज्म बन जाएगा इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. रिट्रीट ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ, विड्रॉवल ऑफ रिलीजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ. देन secularism hints towards the rise of science, modernity, rationality. Indian meaning क्या है इसका? Indian meaning opposite of communalism. Equal weightage given to all the religions, equal importance given to all religions, and the state does not favor any particular religion over others. There's an equal respect, right? No separation or distancing. ठीक है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स पब्लिक हॉलीडेज टू मार्क द फेस्टिवल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, बी इट ईद, बी इट गणेश चतुर्थी. ठीक है. बी इट बैसाखी, एनी फेस्टिवल ऑफ बी इट ईस्टर, क्रिसमस. ठीक है. तो हम सारे रिलीजन्स के फेस्टिवल्स को we celebrate, we declare them as public holidays. And this is the proof that yes, India is a secular state. Now, last topic coming up, which is your civil society, authoritarian state. छोटे छोटे topics हैं. अब authoritarian state हम कब बोलते हैं कि a state has become very authoritarian? जब the state does not recognize the civil liberty of its citizens. Easy. Authoritarian state is opposite of democratic state. ठीक है. अथॉरिटेरियन में क्या होता है? कोई लीडर आ जाता है जिसके विम्स एंड फैंसीज पे हमें काम करना होता है. देयर इज नो डेमोक्रेसी. ठीक है. पीपल हैव नो वॉइस, दे हैव गॉट नो सिविल लिबर्टीज, सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज अबॉलिश हो जाते हैं. कोई अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबल कोई नहीं रहता है अथॉरिटेरियन स्टेट में. बट आपकी डेमोक्रेटिक स्टेट इज वेरी डिफरेंट, अपोजिट. ठीक है. सो अथॉरिटेरियन स्टेट पे शॉर्ट नोट अगर आए तो ये पॉइंटर्स लिख के आना. सबसे पहले अपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, पीपल हैव नो वॉइस, नो सिविल राइट्स, लिबर्टीज, नो अकाउंटेबिलिटी, नो मीडिया, नथिंग. ठीक है. Now let's go towards the last topic, which is the most important topic of this chapter, civil society. इस पे question जरूर आता है. What is a civil society? Civil society is any institution which lies beyond the domain of family and also outside the state or market. यानी state, market, private domain, family domain, इससे कुछ करना नहीं. It lies beyond the domain of family and also outside the domain of state and market. सिविल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें कोई स्टेट का कंट्रोल नहीं होता है, जिसमें कोई प्रॉफिट मोटिव भी नहीं होता है, कमर्शियल या प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता. लाइक एनजीओज, ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया एटसेट्रा. अब मुझे सोच के बताना, दूरदर्शन जो है, कैन वी कॉल इट अ सिविल सोसाइटी? जो दूरदर्शन होता है ना, we've all heard about it. So we cannot call it a civil society. क्यों? क्योंकि there's a state control, थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंट्रोल है. ठीक है. So civil society के फीचर्स याद रखना. lies beyond domain of family and outside state and market. इसमें कोई state control या profit making motive नहीं होता है. ठीक है. Now there's an example of emergency of 1975 and 77. ये अथॉरिटेरियन स्टेट का आपको यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे दिया. इमरजेंसी की स्टेट कैसी थी? अथॉरिटेरियन स्टेट की. भाई कोई वॉइस नहीं था. ठीक है. अथॉरिटेरियन रूल चल रहा था. इट शॉक्ड पीपल. there was increased active participation of people. क्यों?
क्योंकि दे वांटेड टू यूनाइट अगेंस्ट द स्टेट। जो भी स्टेट कर रहा था उसके अगेंस्ट सब लोग यूनाइट हो रहे थे और सब लोग बोल रहे थे दैट कांग्रेस इज नॉट डूइंग अ राइट थिंग बाय इम्पोजिंग दिस इमरजेंसी, देयर आर नो सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज। सो एक तरह से ये दो कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड है। When your state becomes authoritarian, people they start uniting and they form civil societies. Did you get the link? ठीक है, so इस अथॉरिटेरियन स्टेट ने, अथॉरिटेरियन एरा ने सिविल सोसाइटीज को एनर्जाइज किया। ठीक है, सिविल सोसाइटीज को थोड़ा प्रमोट किया, थोड़ा बूस्ट दिया। अब एक सिविल सोसाइटी जिसके बारे में पढ़ना है, जिसके एक एग्जाम्पल जिसके बारे में लर्न करना है, वो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, मेरे रिपोर्ट्स में आया था। ठीक है, सो दे विल टेल यू टू राइट अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल सोसाइटी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था। ये लॉ पास कब हुआ था? 15 जून 2005, डेट्स लिख के आना। और इनफोर्स कब हुआ? 13 अक्टूबर 2006. Now this law enacted by the parliament is giving access to Indians to like Indians are free to access the government records. गवर्नमेंट का जो मर्जी डॉक्यूमेंट है आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नाउ एनी पर्सन, एक रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है आपको आरटीआई का फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, और जो रिप्लाई है like the government authority, it is expected to give reply within 30 days. और सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं आप, दे आर इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये लॉ कब पास हुआ? 15 जून 2005। ये पूरा एक बॉक्स है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। एनफोर्स हुआ 13 अक्टूबर 2006, CUET। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न कर लेना। नाउ इसके पहले, आरटीआई के पहले, सारी जो ऑफिशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती थी गवर्नमेंट की, इट वाज रेस्ट्रिक्टेड बाय द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, ये भी याद रखना। अब एक्ट बताता है कि सिटीजन्स हैव अ राइट टू रिक्वेस्ट एनी इंफॉर्मेशन। आप गवर्नमेंट से कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो गवर्नमेंट से। यू कैन इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वर्क एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, आप सर्टिफाइड सैंपल्स ले सकते हो गवर्नमेंट के किसी भी मटेरियल को, फ्लॉपीज, प्रिंट आउट, डिस्केट्स, कैसेट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन को बेसिकली आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। सो दिस वाज डन बाय द सिविल सोसाइटी। उनके प्रोटेस्ट की वजह से ये एक अकॉम्प्लिशमेंट हासिल हुआ था, राइट? सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। ठीक है, any doubts, feel free to use the comment section. Okay, so thank you very much. Like, share and subscribe, Humanities.